بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم حکومت اور فاروق حیدر صاحب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی، پانی، فرنیچر، ٹوائلٹ وغیرہ کے مسائل حل کریں تاکہ ہم بھی خوشگوار ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم مٹی میں بیٹھتے ہیں اور کیا جائے۔ پچھلے 15 سال سے یہاں پہ 2 ٹیچروں کا آرڈر ہوا ہے، لیکن یہاں صرف ایک ہی ٹیچر آتی ہیں، جن کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مس نازیہ، جو کہ پچھلے 14 سال سے اکیلے ہی جو ہے 2 ٹیچروں کا کام اکیلے سنبھال رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ یاسر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی ٹی وی۔ انسان اور جانور دونوں ہی اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات ہیں، لیکن تعلیم اور عقل ان دونوں میں بنیادی فرق پیدا کرتی ہے۔ جس تعلیم نے ہم کو آج سیاسی بنایا، ہم کو سیاست سکھائی، اس سیاست کی وجہ سے ہم تعلیم کو کبھی بھی برباد نہیں ہونے دیں گے۔ آج میں موجود ہوں ضلع کوٹلی کے ایک گاؤں حلقہ نمبر 3 کے ایک گاؤں نلی میں، اور یہاں ہم موجود ہیں ایک پرائمری اسکول میں، اور اس پرائمری اسکول کی جو بنیاد تھی وہ 2006 میں رکھی گئی تھی، اور تقریباً 15 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور یہ اسکول جیسا بنا تھا ویسا ہی ہے، اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی، اور اس میں پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ سب سے بڑا ایشو جو ہے واش روم کا ہے، یہاں پر ڈیسک وغیرہ نہیں ہیں، کرسیاں نہیں ہیں، چندہ کر کے یہاں پہ بچوں سے جو ہیں وہ جو اسکول کی چیزیں ہیں وہ منگوائی جاتی ہیں۔ تو جب 2006 میں اس اسکول کی بنیاد رکھی گئی تو 2 بڑے نام جو ماسٹر شکیل اعوان صاحب اور ساتھ میں جو ملک شوکت اعوان مرحوم صاحب جو تھے، انہوں نے اس کی منظوری کروائی تھی، اور ملک شوکت مرحوم صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، لیکن تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری یونین کونسل پنجیڑا ملک شکیل اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ اسکول کی جو بنیاد ہے وہ کب رکھی گئی اور کتنا جو ہے لاگت آئی اسکول پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ شکیل صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی۔ اچھا، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں، یہ جو اسکول ہے اس کی بنیاد 2006 میں رکھی گئی ہے، تو اس کے بعد ہمیں اس اسکول میں کچھ بھی ترقی دیکھنے کو نہیں ملی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایریا ہے یہ دیہات میں شامل ہے، اور اس ایریا میں اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ تو بہت سائڈ پہ آ رہا ہے، اور نلی جو آخری گاؤں بنتا ہے اپنا یونین کونسل پنجیڑا کا، تو اس طرح کے اور بھی ادارے ہیں جو کہ جتنی دور سائڈ پہ واقع ہیں، ان اداروں پر توجہ بالکل نہیں دی گئی ہے حکومت کی طرف سے، نہ اس سے پہلے اور نہ اب تک دی گئی ہے۔ اس کی وجوہات میں یہ جو کام ہے یہ تو لوکل جو حلقہ کا جو ایم ایل اے ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس ایریے پہ وہ توجہ دے، اور محکمہ تعلیم کی بھی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ایریے پہ توجہ دے، اسکول کے معاملات جو ہیں وہ دیکھے۔ اچھا، یہ جو اسکول ہے یہ راجہ نصیر صاحب نے دیا تھا 2006 میں، تو کتنا جو اس کا بجٹ لاگو ہوا تھا؟ یہ 2006 کی بات ہے، اس وقت جو ہے یہ اس کا بجٹ 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور اس وقت ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ 1.5 لاکھ بجٹ اس وقت کے لحاظ سے تو ٹھیک بنتا تھا، آج کل تو کافی مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ تقریباً اس کا کوئی 5 گز کا کمرہ بنا لیں۔ تو میں نے اور شوکت بھائی کا نام آتا ہے تو یقین جانا کہ جب اس اسکول کو بھی دیکھتا ہوں تو مجھے ان کی یاد آ جاتی ہے، وہ اب ہم میں نہیں ہیں۔ ہم دونوں نے مل کے یہ اسکول کی منظوری کروائی تھی، نیاز جو بنانا تھا 1.5 لاکھ میں منظوری ہوئی ہے، اور 5 گز کے بجائے میں نے یہ تقریباً جو ہے یہ 10 گز کمرہ اس کے ساتھ برآمدہ ہے، اور آپ کے سامنے ایک جو چھوٹا سا آفس نظر آ رہا ہے، یہ میں نے مستقبل بنیادوں پہ جو ہے نا اس کو تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ 1.5 لاکھ میں تو اس وقت بھی ایک کمرہ نہیں بنتا تھا،
ये सब आपने कैसे मैनेज किया? 1.5 लाख में इतना जो है तकरीबन 10 गज जो ये कमरा है, साथ में ये छोटा सा ऑफिस भी बनाया, तो ये आपने कैसे सब चीज़ों को मैनेज किया? अब हुकूमत की तरफ से तो मुझे 1.5 लाख की मंजूरी मिली है, लेकिन वहाँ से मुझे 1,20,000 रुपये वसूल हुए हैं, और इस पे जो लागत आई है वो 2 लाख रुपये लागत आई है। 1,20,000 रुपये जो है वो हुकूमत की तरफ से मिला है, और बाकी 80,000 रुपया जो मेरे छोटे भाई बाबर अवान है, ये उनसे मैंने लेके जो है ना ये स्कूल मुकम्मल किया है। 1,20,000 क्यों मिले, बाकी 30,000 कहाँ गए? ये 30,000 अब मुझे इसकी समझ नहीं है कि पहली बार मैंने यानी कि ज़िंदगी में ये पहला ठेका लिया था काम करने का, यानी गांव की हैसियत में ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन गांव में मैं और शौकत भाई जो है ये हम करते धरते छोटे मोटे मामलात जो थे गवर्नमेंट के कामों में या रोड के कामों में बढ़ चढ़ के हम जो हमारी काबूज होती थी हम काम को जो है काम करवाएं, मुकम्मल करवाएं, या ठेके वगैरह लेके हमारे अपने गांव की तरक्की के लिए हम कुछ कर सकें। तो उस वक्त 1,20,000 या कि कुछ कटौती की है, या ये जो सेक्रेटरी हजरात होते हैं जो ये कैश करवाते हैं रुपये, तो उसमें भी उन्होंने आके इस पर एतराज़ किया कि ये स्कूल आपने छोटा कर दिया या छोटा बना दिया है। हालांकि राजा नसीर खुद यहाँ आए, उन्होंने जब स्कूल देखा तो उनने भी कहा कि भाई इतना बड़ा स्कूल बना दिया इन्होंने, ये तो बड़ा ज़बरदस्त बना दिया है, लेकिन सेक्रेटरी ने जो वो 30,000 रुपये जो है वो कटौती करवा दी है। यहाँ पे बाथरूम नहीं है जो सबसे बड़ा इशू है, वैसे ना यहाँ पे बिजली है, ना पानी है, ना बच्चों के बैठने के लिए कोई जगह है। हर साल जो है वो हुकूमत की तरफ से पेपर आते हैं, वो यहाँ पे जो टीचर हैं वो फिल करके देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। इसके बारे में आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं खुद पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद हैरान हूँ कि ये अदारा जब मैं इसको देखता हूँ तो यकीनजनक बहुत अफसोस हो रहा है। आज भी मैंने देखा है, पिछले साल भी मैंने इसका विज़िट किया है, उस वक्त तो ये बच्चे बिल्कुल नीचे ज़मीन पे बैठे हुए थे, पत्थरों पे बैठे हुए थे, नीचे कागज़ टाट और बोरियां रख के बच्चे नीचे बैठे हुए थे ग्राउंड में। तो अब हुकूमत को तो मैं खुद यानी कि तालीम प्राइवेट जो है मेरा सेक्टर से मैं तल्लुक़ रखता हूँ, मेरे अपने अदारे भी हैं, जितनी सहूलतें हमारे प्राइवेट अदारों में इतनी जो है इस वक्त गवर्नमेंट अदारों में नहीं है। हुकूमत को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि एक छोटा सा अदारा प्राइमरी लेवल का है, प्राइमरी लेवल के जो बुनियादी मामलात हैं उन मामलात को पूरा करना चाहिए। जैसे यहाँ ये तो ऑफिस का सामान भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना ऑफिस टेबल है, ना ऑफिस चेयर है, ना कोई अलमारी है, ना कोई स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है। मुझे अफसोस हो रहा है, ये काम जो है हुकूमत की, ये मैं तो समझता हूँ प्रायोरिटी में ये काम होना चाहिए था कि हुकूमत इसको मुकम्मल करे। तो अब तक जो है मैं देख के यकीन जो है ना कि मुझे सख्त अफसोस हुआ है, दुख हो रहा है। ये मेरा अपना गाँव है, इस वक्त मैं यहाँ नहीं होता हूँ, लेकिन वापस अभी जब कभी भी इधर मेरा कोई चक्कर लगता है, मैं स्कूल को देखता हूँ तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये काम जो हुकूमत का बनता है 1% भी काम नहीं हुआ इस पर। तो लास्ट में और किसी को कोई पैगाम देना चाहते हैं? लास्ट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत को जहाँ कहीं भी, मैं नली की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ कहीं भी प्राइमरी अदारे हैं, ये बेसिक तालीम होती है, लोगों के छोटे छोटे बच्चे जो है वो वहाँ तक जो अर्ली एज में वहाँ 5 साल 4 साल की उम्र में बच्चे वहाँ जाते हैं, उनके लिए सहूलियात होनी चाहिए। बुनियादी सहूलतों में देखें कि वाशरूम की सहूलत जो है ये भी बड़ी बुनियादी सहूलत है, वहाँ के स्टाफ होता है। और आज के दौर में मैं नहीं समझता हूँ कि जो कोई ऐसा अदारा के जहाँ वाशरूम ना हो। वाशरूम जो है बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए भी एक बुनियादी ज़रूरत है। ये स्कूल के दीगर जो लवाजमात हैं या दीगर जो ज़रूरियात हैं, उनमें फर्नीचर हो गया, स्कूल का ऑफिस का जो सामान हो गया, और दीगर स्टेशनरी वगैरह हो गई, ये चीज़ें भी जो प्रॉपर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम हुकूमत और फ़ारूक हैदर साहब तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे पास बिजली, पानी, फर्नीचर, टॉयलेट वगैरह के मसाइल हल करें ताकि हम भी खुशगवार माहौल में तालीम हासिल कर सकें। हमारे पास बैठने की जगह नहीं है, इसके वजह से हम मट्टी में बैठते हैं और हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। हम रोज़ाना जाकर कपड़े हमें धोने पड़ते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वाहिद जामी साहब, जो यहाँ इलाका नली के मकीन हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो तरक्की है क्यों नहीं की गई, यहाँ के लोगों ने जो आवाज़ क्यों नहीं उठाई, आखिर क्या उनको इन बच्चियों का मुस्तकबिल नज़र नहीं आता? क्या ये लोग जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट अदारे में
भेज देते हैं, और बजाय इसके कि वो इस इशू पे जो है अपनी आवाज़ उठा सकें। तो मेरे साथ मौजूद हैं वाहिद जामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये यहाँ पे टॉयलेट का सबसे बड़ा इशू है, वैसे सारे बुनियादी इशू हैं, तो इस हवाले से क्या अवाम इलाका का ये हक़ नहीं बनता कि इस पे आवाज़ उठाई जाए? जी बिल्कुल सही है, ये अवाम इलाका के लिए आवाज़ नहीं बल्कि ये उनका हक़ बनता है, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा चौक है, मसरूफ़ तरीन रास्ता है, यहाँ से दिन भर यहाँ के लोगों का गुजर होता है इधर से, ठीक है। तो यहाँ कोई किसी किस्म की ऐसी सेफ्टी नहीं है, कोई पर्दा नहीं है कि बच्चे कहाँ जा रही हैं या किसी नीचे जगह पे चले जाएं। तो ये देख कर बड़ी हमको तकलीफ भी है और शर्म भी महसूस हुई है। अक्सर जब मैं इधर से गुजरता हूँ तो मैंने देखा कि ये बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं बाथरूम में, नीचे चले जाते हैं, उन्हीं हाथों से बगैर वुज़ू किए बगैर हाथ धोए वही किताबें आके पकड़ लेते हैं। तो ये इलाके की जब जहाँ तक बात रह गई है, यहाँ के जो लोग हैं, पहली तो बात है ये कम तालीम वाले लोग हैं, दूसरी बात है ये लोग ये सियासी लिहाज से या किसी लिहाज से भी ये टुकड़ों में तकसीम हो चुके हैं, इनकी तो तवज्जो भी नहीं आता। दूसरी बात जो हुकूमती लेवल पे है उनका तो ये पहला फ़र्ज़ बनता है कि इस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये जो मासूम बच्चे हैं आप देख रहे हैं कि इनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, ये फूल जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे अभी मिट्टी में इस तरह बैठे हुए हैं, जो नीचे आप देखेंगे वो आपको दिखाएंगे कि इधर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे कौम की अमानत भी है, तो हम अपने बच्चों को तो कभी इस तरह नहीं गंदा आने देते, नहीं देखना पसंद करते। तो ये अगर बाकी लोगों के बच्चे हैं तो बच्चे सब के लिए बच्चे होते हैं। तो मैं हुकूमत से भी और इलाक़ाई अवाम से भी मैं ये अपील करता हूँ कि बराए करम ये स्कूल में जितनी ये चीज़ें हैं, जितनी ये कमियाँ पेशी हैं, इसका इंतज़ाम किया जाए और इनको इनकी सहूलत से महरूम ना किया जाए। पिछले 15 साल से यहाँ पे 2 टीचरों का ऑर्डर हुआ है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही टीचर आती हैं, जिनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मिस नाजिया, जो कि पिछले 14 साल से अकेले ही जो है 2 टीचरों का काम अकेले संभाल रही हैं, और साथ में जो ये यहाँ पे फर्श वगैरह नहीं पड़े हुए स्कूल में, तो जो ये मट्टी वगैरह जो है इसकी लिपाई जो इसके बरामदा हो गया, इसका जो हाल हो गया, इस सब का जो लिपाई खुद करती हैं बच्चों के साथ मिलकर। तो क्या ये हमारे लिए या यहाँ के इलाके जो इस इलाके के लोगों के लिए बायस शर्म नहीं है? जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैं मिस नाजिया साहिबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनके सब्र और तहम्मुल से कि जिन्होंने इतना वक्त इस तरह इस मुश्किल में गुजारा है। तो मैंने इनसे थोड़ी सी कुछ बातें पूछी थी, तो उन्होंने ये भी बताया कि कुछ काम इनकी लिपाई वगैरह का इन्होंने अपने हाथों से भी किया है, बच्चों से भी करवाया है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बायस शर्म है। इज़्ज़त जो ये माँ और बेटी सब की इज़्ज़त होती है, तो हम सब लोगों का ये हक़ बनता है, या हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये मैं आपको बात एक बता रहा हूँ कि अगर इन बच्चों की आप वो हालत देख लें तो आजकल जेलों में भी जाओ, जो बड़े बड़े मजलूम लोग जाते हैं तो जेलों में जाते हैं, तो उनके लिए भी खाना भी होता है, उनके लिए पानी भी होता है, टॉयलेट भी होती है, उनको भी तालीम दी जाती है। तो मैं इस दायरे को या इसकी हालत को, इस माहौल को मैं देख कर इससे किस चीज़ की तशबीह हुई है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे जो दूसरी टीचर हैं रियाज सदीक, वो यहाँ पे नहीं आ रही, इसके बारे में आप हुकूमत से या वज़ीर तालीम से आप किसी से क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये जो अभी मिस साहब ने बताया था, मैंने उनसे पूछा था कि ये मिस साहिबा और भी हैं या आके अकेली हैं, तो वो कह रहे थे कि वो फ़िलहाल इधर मौजूद नहीं है। तो ये अकेले 5 जमातों को ये लीड कर रही हैं, ये इतने बच्चे हैं सबको लीड कर रही हैं। ये देखें कि जितने भी निसाब हैं ये अकेले सब इनको पढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है, ये सब बच्चों को संभालना पड़ता है। तो मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि ये साहब से और डी साहब से मैं अपील करता हूँ कि इस चीज़ पे खासी नज़र रखी जाए और इसकी चीज़ के लिए एहतमाम किया जाए, उसकी पूछताछ की जाए, और यहाँ के कुछ न कुछ 1 महीने 2 महीने के बाद या दौरा लगाया जाए या विजिट किया जाए, ताकि इनकी जो हाज़िरी है वो यकीनी बन सके। लास्ट में मुझे कुछ पैगाम जो आपको देना चाहते हैं तो वो दे सकते? जी, मैं ये अपनी इलाका अवाम, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, ये जो काम है ये सदका जारिया के काम है, ये जो तालीम के काम होते हैं ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए होते हैं। इसमें ना कोई पार्टी होती है, इसमें ना कोई इस तरह का इख्तलाफ होता है।
تو میں اپنے علاقۂ عوام کو اور میں سیاسی قائدین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ براہ کرم اپنی سیاست اور اپنی پارٹی کے لیے لڑ کر ان بچوں سے انتقام مت لیجیے، ان بچوں کے حل پر رحم کیجیے اور جہاں تک بھی یہ ادارے اس طرح کے ادھورے پڑے ہیں، جن کے کام ادھورے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہاں پہ کتنے زیادہ مسائل ہیں، اور جو سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ نوٹس لیا جائے کہ جو یہاں پہ دوسری ٹیچر ہیں جن کا آرڈر ہوا ہے ریاض صدیق، ان کو یہاں پہ بلایا جائے، ان کو ڈیوٹی پہ جو ہے حاضر کیا جائے۔ میں ایو صاحبہ سے، وزیر تعلیم سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کا فوری نوٹس لیا جائے، اور ساتھ میں جو یہ حکومت تک اگر یہ ہمارا پیغام پہنچے تو یہ جو اسکول کے حالات ہیں یہ بالکل ہی اس کے پڑھائی کے ماحول کے مطابق بالکل بھی جو ہیں وہ نازیبا نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بچوں سے بھی کچھ سوالات کریں گے، اور جو یہاں پہ سب سے بنیادی ایشو ہے واش روم کا، جو ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کا جو ہے وہ حل ہونا۔ جی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو بچے ہیں ان کا اپنے موقف سنا، اور ہم جو ہے حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ ان بچوں کے مستقبل کے لیے ان کو جو ہے سہولیات پرووائڈ کی جائیں، تاکہ یہ اپنا بہتر سے بہتر مستقبل جو ہے وہ اچیو کر سکیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ یاسر ملک کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔